So welcome you all to the training session on ISO 9001 2015 Quality Management System Internal Auditor, and today is the session 12. And in today's session, after the clause of confidentiality, we will go through audit activity process flow. Okay, so it's just general key what activities are there involved in the auditing, right from planning till the report submission and closure of the ANSYS. Then we will see how to prepare the audit checklist. We have seen for clause number 4 in the Friday session, and today we will cover clause number 5 and 6, how to prepare the question or how to interpret the requirement, so that when you go for the auditing of a particular section, how you will raise the question, because we have seen the various question types, the ways of gathering the information or observations, audit evidences. So we will see what questions you can prepare. Mr. Sarona, please mute yourself. And a turtle diagram for calibration section we will see, maintenance section, and control of non-conforming product. These three we will discuss, so that you will get a feel of yes how the turtle diagrams are prepared. And turtle diagrams are not only used for auditing, okay, it is basically a process approach. To demonstrate the process approach it is used. So even organizations can prepare the turtle diagram for their sections, various activities, and based on that also you can do the auditing. And how to do that we will discuss with these three turtle diagrams. Even we will discuss about how to manage the processes using the PDCA cycle, plan, do, check, act. Okay, so that is also part of a process approach. And then we will have certain NC scenarios, non-conforming scenarios. Today we are going to discuss two non-conforming scenarios with you. There is a description of a particular non-conforming scenario. जैसे कि आप किसी सेक्शन में ऑडिट करने गए एंड यू फाइंड दैट पर्टिकुलर थिंग. सो हमने एक प्लॉट बनाया हुआ है, वी विल शो इट टू यू, यू हैव टू गो थ्रू दैट एंड you need to find out whether there is a non-conformance or there is no non-conformance, there is a compliance or conformance. That first thing you need to arrive at. And if there is a conformance, then only you need to find out as per which clause the conformance is there and what was the objective evidence you have for conformance. And similar thing with the non-conformance. If non-conformance is there, what requirement of the 9001 or organizational requirement it has not met, or audit criteria requirement it has not met, the objective evidence you have to give there. So that we will discuss. Okay, so clause of confidentiality, as we are telling you at the start of every session, the training content is of proprietary nature. Do not share the screenshots recording on any of the public platform, not to any connections without the prior consent from us. Share the knowledge, do not share the contents directly. Now we are discussing the auditing things. Now how you are going to manage an audit, if you are a document controller or you are a management representative, or even you are say a part of an organization which follows this internal auditing, you must be aware of how this auditing activities or auditing activity process flow is. So first of all, what we do the audit plan, we prepare the audit plan, and then we prepare the audit schedule also. So basically preparing or planning the audit program. And we have seen in the 9.2 that organization shall prepare a audit program or manage the audit program, implement the audit program. So organization needs to establish, organization need to maintain, and organization need to implement the audit program. So first you will make the audit program, and it can be done by making the audit plan and the audit schedule. That both the formats we have discussed also. I have shown you how to make the audit plan, how to make the audit schedule, where all the information about the auditee, auditor, date of audit, section to be audited, the criteria can be mentioned. Then you need to carry out the audit either using the check sheet or based on your experience, or utilizing the process approach, that is
utilizing the turtle diagrams also, or PDCA cycle also you can do that. Now, as I am emphasizing every time, unless and until you have experience of auditing for 1 year, 2 year, or at least for 6 to 7 cycles of auditing you have, you may have to refer to the check sheet. Even the organizations, or I can say the internal auditors who are working there for tens of years, they also do not carry out the internal auditing properly. They do not know how to carry out the audit. And they just go with certain things in the mind with a biased thing, and they just carry out and complete certain formality, documentation formality, and finish the audit. But ultimate aim of internal audit is to find the fact, to find the gaps in the existing in the system, QMS system, and when we find the gap, when we evaluate these things, we will come to know that yes, there is a opportunity for improvements are there. If you take certain actions, some corrective action, some preventive action, it is going to continually improve your system, quality management system. So that is the purpose of the auditing. So go with the right intent, you carry out the audit. Now raise the non-conformance in the prescribed format as per your organization. Every organization has their own format. So raise the non-conformance in the prescribed format. Now, if there are no non-conformances, so definitely there will be an observation sheet in which the compliances things will be there. Yes, we observe these things. So whether non-conformance or no non-conformance, the observation has to be there. Okay, because you are raising the non-conformance based on the observations only. जो हमने ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं उसी बेस पे करोगे. सो ऑब्जर्वेशन हैज टू बी देयर, ऑब्जर्वेशन शीट होना ही चाहिए. नाउ अगेन ISO 9000 इज नॉट आस्किंग फॉर दैट, है ना. दे आर आस्किंग फॉर योर documented information related to the audit program, related to the actions taken or closure of the non-conformances. But a good organization keeps the record and prepare a format for audit observations also. मैंने आपको एक दिखाया भी था format that audit observations का. And again, at the end of the day, I am going to share that formats with you also. If your organization is using similar thing, okay, continue with that. If you want to take something good from this format and incorporate into your format, you can do that also. Then once the NC is raised, non-conformance is raised, what needs to be done? We have to make the follow-up actions by way of correction and corrective action. The auditee needs to take the correction and complete the corrective actions. Again, the procedure that your organization prepares, इसकी एक प्रोसीजर होती है, क्वालिटी प्रोसीजर फॉर इंटरनल ऑडिट्स. अब उस प्रोसीजर में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द क्लोजर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर करेक्टिव एक्शन, फॉर करेक्शंस ना, वो सब वहां पे लिखा रहता है. ओके, सो व्हाट आई विल डू टुमारो, वी विल go through one auditing procedure, है ना. One audit procedure I have, so we will go through that also. Even if today time permits, we will go today. Otherwise, tomorrow we start with the audit procedure. है ना. We start with these formats, corrective action formats. We start with the observation sheet one more time. And then once you follow up with the action, people have taken the correction, people have taken the corrective action on the raised non-conformances or opportunity for improvements, what you will do? You will close the NCs. So the cycle completes as closure of the NC. But again, it is not the end. This cycle needs to be repeated again and again. Again, you will carry out the audit or schedule the audit. Again, you will carry out the audit. Again, you will raise the non-conformances. Again, corrective actions will be taken. Again, this will be NC will be closed. So it is a continual improvement, and it is a recurring activity of improvement. It is a recurring activity. It is not one-time activity. Okay, that's why it is called continual improvement.
Okay, any doubt in this process flow? Okay, so no doubt, so we will move forward. Now let us start preparing the questions. How you are going to prepare a audit checklist or questions for this particular clause, that is clause number 5. So first, before that, you need to understand the clause requirements. You need to understand the clause requirements. That's why every time you cannot take the 9001 and go for the audit. That's why we need to prepare the check sheet. That's why, like, अगर आपको इंटरनल ऑडिटिंग में जिम्मेदारी मिली है कि मुझे लीडरशिप प्रोसेस को ऑडिट करना है, तो आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? अगर आपको लीडरशिप प्रोसेस को ऑडिट करना है, सो यू विल गो, बिफोर गोइंग यू विल मेक अ चेक शीट कि मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड यू विल नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दैट ओनली. अगेन, एज द सिचुएशन इवॉल्व्स ड्यूरिंग द ऑडिटिंग, आप फर्दर चेक करोगे, फर्दर डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, है ना. तो अभी वी विल गो थ्रू वन बाय वन क्वेश्चंस. Just 2 minutes of time you can go through the requirement and understand that yes, I am a top management, you are the auditee, you have come to audit me. What kind of questions you will ask or what kind of things you will observe to check whether the organization is complying with this requirement or not. So just 2 minutes of time, you can go through the requirement, prepare yourself 2 or 3 questions. If you have any doubt, you can ask also now. If you are involved in the external audits also, means when the external certification bodies come to your organization, you will notice that the first thing is the top management audit. Sometimes it is adjusted on the next second day, third day also, depending on the availability of the management. But normally after the opening meeting, the first audit will be of the top management, because from there they will come to know कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. तो सिमिलर वे आपको भी ये पता होना कि यस, ऑल दिस थिंग्स आर प्रॉपर्ली डन और नॉट. नॉर्मली क्या होता है, इंटरनल ऑडिटिंग में टॉप मैनेजमेंट का ऑडिट लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एज ए एम्प्लॉय हाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टू द टॉप मैनेजमेंट. बट इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको जाके टॉप मैनेजमेंट को ही पूछना है. अगर वो अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, बट जो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर है ना, या फिर टॉप मैनेजमेंट ने जिसको भी ये डेलीगेट की है, उनके साथ आपने ये डिस्कशन करना चाहिए इस रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. एंड अगर पॉसिबल तो प्लीज इन्वॉल्व द टॉप मैनेजमेंट ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन द एक्सटर्नल ऑडिटर इज कमिंग, they have to face the auditors. Definitely the MR or management coordinator or document controller can sit with them, can provide the required document, but मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, एक बात हमको याद रखनी है, क्वेश्चन मीन्स ऑडिटिंग अ पर्टिकुलर क्लॉज डजंट मीन कि आपने क्या पूरे ने के जितनी रिक्वायरमेंट है सबको क्वेश्चन पूछते रहो, है ना. एवरी रिक्वायरमेंट के ऊपर क्वेश्चंस नहीं चाहिए, है ना. देयर आर सर्टेन थिंग्स यू कैन कोरिलेट विथ ईच अदर, है ना. यू कैन कोरिलेट विथ ईच अदर. सो लेट अस स्टार्ट, है ना. मिस्टर सरवना. Yes, sir. Yeah. What is the requirement of this particular clause? This sentence, what it is saying? Top management shall demonstrate leadership and commitment with the respect to the quality मैनेजमेंट system by, है ना, QMS, है ना. अब मैनेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करनी है, डॉक्यूमेंट नहीं करने के लिए बोल रहे हैं, है ना. मैनेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करनी है लीडरशिप एंड कमिटमेंट. तो एज अ ऑडिटर जब हम वहां जाएंगे, वी आर गोइंग टू चेक वेदर top management is showing, demonstrating the leadership and committed, whether they are committed towards the quality management system or not. उसके लिए हमको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे उनको,
ओके, सो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे वी वांट टू चेक वेदर दे आर टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। तो आप उनको ये भी पूछ सकते हो, यू डोंट नीड टू फ्रेम द क्वेश्चन फॉर ईच एंड एवरीथिंग, आपको चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी ले रहे कि नहीं ले रहे। ओके, सो यू कैन सिंपली आस्क, यू कैन फर्स्ट स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजेशंस। जब हम टॉप मैनेजमेंट का ऑडिट करते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछे उसको कि व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट प्रोडक्ट्स यू आर मैन्युफैक्चरिंग, कैसा है, क्या सिनेरियो, बिजनेस सिनेरियो। अब आप उनको थोड़ा थोड़ा पूछना चाहिए कि हाउ यू आर, आपको क्वालिटी पॉलिसी है कि नहीं, वहां पता चल जाएगी। सो प्लीज चेक वेदर क्वालिटी पॉलिसी इज अवेलेबल। यू डोंट नीड टू आस्क द मैनेजमेंट कि मुझे क्वालिटी पॉलिसी समझाओ, नो नीड। ओके, यू कैन आस्क देम कि यस you have established the quality policy or not. You can ask the question, what question, have you established the quality policy or can you please show us the quality policy। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो आप क्वेश्चन क्या पूछोगे, लेट मी राइट इट हियर। तो आप क्वेश्चन पूछोगे यहां पर, आप यह चेक करोगे इज द क्वालिटी पॉलिसी अवेलेबल। अब आप क्वेश्चन नहीं पूछना है, आपको ये चेक करना है। तो आप जो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर है या टॉप मैनेजमेंट, कैन यू प्लीज शो मी द क्वालिटी पॉलिसी। अगर उसका आंसर यस है, ओके, आपका कंप्लायंस हो गया। बट ये ऑब्जर्वेशन शीट में आना चाहिए आपके। तो चेक शीट में आपको क्या चेक करना है, इज द क्वालिटी पॉलिसी अवेलेबल। ठीक है, देन आर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, फिर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं उनको, किसका, व्हाट इज द विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्या है। तो आपको पता चलेगा कि यस, कि उनका ओरिएंट मींस वेदर दे वांट टू बी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, वेदर दे वांट टू अ पर्टिकुलर सेक्टर स्पेसिफिक ओरिएंटेशन उनका है। फिर आप ये चेक कर सकते हो कि जैसे आपने मुझे पूछा कि आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आपका कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की। तो मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि यस, वी वांट टू बी अ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। राइट नाउ आवर एक्सपोर्ट इज 20% ओनली, 80% इज डोमेस्टिक। वी वांट टू इंक्रीज इट फ्रॉम 20% टू 50%। ये मैंने आपको बताया। अब आप मुझे बताइए क्या आप पूछोगे इसके ऊपर क्वेश्चन। यहां पे देखिए क्या बोला है, आर कॉम्पेटिबल विद द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन, कॉन्टेक्स्ट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब बताइए मुझे आप क्या क्वेश्चन पूछोगे नेक्स्ट। मैंने आपको बताया कि वी वांट कि आज जो हमारा 20% एक्सपोर्ट है, वी वांट टू इंप्रूव इट टू द 50% फॉर बेटर रियलाइजेशन एंड बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिशन इन दी लोकल मार्केट। क्योंकि देखिए कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी मुझे देखना है। कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इश्यूज विच हैव इम्पैक्ट ऑन द organization's ability to achieve its intended results, achieve its objectives। अब जो एक्सटर्नल इश्यूज है, कंपटीशन इज आल्सो वन ऑफ द इशू, है ना, लोकल कंपटीशन। सो टू कैटर दैट, ऑर्गेनाइजेशन वांट टू एक्सपांड इट्स बेस, मींस एक्सपोर्ट बेस एक्सपांड करना है मुझे। अब ये तो बता दिया मैंने कि यस, मुझे एक्सपांड करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा एज ऑडिटर, आई एम आस्किंग टू मिस्टर प्रशांत ऑल्सो, मिस्टर सरवना ऑल्सो, वो तो एनीवन कैन आंसर, कि मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या पूछोगे मुझे नेक्स्ट, क्या पूछोगे उसके ऊपर। So we can discuss with them what are their plans and what are the targets they have placed हाँ, आप मुझे to पूछ सकते improve हो कि the हैव यू टेकन, यस गुड। export market. हाँ, तो आप ये पूछ सकते हो कि क्या हमने इसको, हाउ यू आर मॉनिटरिंग बेसिकली, या आप ये पूछ सकते हो कि क्या हमने इसको क्वालिटी ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं इसके लिए। ओके, तो अगर चलिए आपने पूछा मुझे कि हैव यू इंक्लूडेड इट इन द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, सो आई से यस। अब मैं बोल रहा हूं कि यस, वी हैव सेट द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स टू इंप्रूव एक्सपोर्ट फ्रॉम 20% टू 50%। अब आप बताइए क्या क्वेश्चन पूछोगे आप इसके ऊपर। मैंने बता दिया कि मुझे इतना इंप्रूव करना है, इक्वालिटी ऑब्जेक्टिव ले लिया है, तो हमको क्या करना चाहिए फिर,
क्या क्वेश्चन पूछोगे आप? What are the measures taken or what are the futures action course? हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि व्हाट आर द एक्शंस प्लान्ड और एक्शंस टेकन, है ना? आप ये पूछ सकते हो कि एक्शन प्लान्स क्या है आपके इसके अचीव करने के लिए, क्योंकि ये तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव है। और आपने अगर 5 में ही देखेंगे हम, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव प्लानिंग एंड टू अचीव इट, है ना, इसी के अंदर है। सॉरी, वो तो प्लानिंग में है। तो उसमें आप देखेंगे कि ये भी लिखा है कि हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट, ये भी होना चाहिए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। व्हाट आर द एक्शंस प्लान्ड, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि जरूरी नहीं कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल रहे, मैनेजमेंट उसकी ये लेगा, अकाउंटेबिलिटी लेगा, बट डेफिनेटली मैनेजमेंट ने किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी, वेदर इट्स एक्सपोर्ट मैनेजर, वेदर इट्स योर से मार्केटिंग मैनेजर, जो भी होंगे उनको उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होगी। या अगर उनके बिजनेस हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनका नाम बताएंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो ये क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो। और क्या पूछोगे आप बताओ इसी के अकॉर्डिंग, ताकि आपको पता चले कि यस ऑर्गेनाइजेशन इज रियली सीरियस। आपको ये पता चले कि यस ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है उसके हिसाब से उन्होंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये सब चीजों को इंटीग्रेट किया है। और आप क्या पूछोगे मिस्टर सरवना, व्हाट क्वेश्चन यू कैन आस्क? एक तो हो गया रिस्पॉन्सिबल, एक हो गया एक्शन। क्या इससे काम हो जाएगा? आपने प्लान किया, है ना? What is the target achieve dates and that also we can ask हाँ, टारगेट तो हो गया 50। the quality of it. आप उनको ये नहीं पूछोगे कि आप कब कब रिव्यू करते हो इस चीज को। वी नीड टू आस्क ना कि हाउ यू रिव्यू इट, हाउ यू रिव्यू द स्टेटस, Yes, sir. है ना? क्योंकि देखिए, Yes, sir. आप उसको कभी भी चीजों को पूरे प्रोसेस को आप प्लान डू चेक एक्ट में डाल दीजिए, है ना? अब इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया, क्या किया कि मुझे 20 to 50% चाहिए, उसके लिए जो कुछ एक्शंस चाहिए थी वो भी प्लान कर दिया कि हाँ मुझे एक्शंस चाहिए थे, मुझे रिसोर्सेज चाहिए थे, है ना, मुझे सर्वे कराना है, क्या कराना है, वो सब प्लान कर लिया हमने, ये प्लानिंग किया। अब एक्चुअली क्या किया हमने, तो एक्शंस होगा। तो हमने एक्शंस में हम आप पूछ सकते हो कि व्हाट एक्शंस यू आर टेकन, ये प्लान हो गया। देन आप पूछ सकते हो स्टेटस ऑफ एक्शंस टेकन, ये आ गया। अब आपको क्या करना है, एक्शन लेने के बाद प्लान डू हो गया, अब आएगा चेक। अब आप चेक कब करते हो, अभी कितना है, हाउ यू रिव्यू, हाउ यू चेक इट कि ये 20 से 50% गया है, 40% है, 30% है, व्हाट इज द स्टेटस, है ना? तो आप उनको पूछोगे हाउ यू रिव्यू द स्टेटस, एंड अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन करके रखोगे। ओके। और जब आप क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का जब ये करोगे, या फिर जब आप मार्केटिंग सेक्शन में जाओगे, जिनको ये लोग रिस्पॉन्सिबल बताएंगे, वहां पे जाके आप चेक करोगे उनके स्टेटस और उनके एक्शंस ऑन नॉन अचीवमेंट। तो आपको उनको पूछना है कि क्या रिव्यू स्टेटस है, और फिर उसका अगेन एक्शन प्लान ऑन नॉन अचीवमेंट। तो क्या हो गया, प्लान हो गया, हमने एक्शन ले लिया, डू हो गया, फिर हमने चेक किया उसको कितना स्टेटस है, और अगेन वी एक्ट टू इंप्रूव इट फर्दर। ठीक है ना? तो ये चीजें हमको क्लियर हो गई यहां से आपके ये क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स वाले में प्लान। तो देखिए रिक्वायरमेंट छोटा सा है, बट नाउ यू कैन गो लाइक दिस, इतनी सारी चीजें हम इसके अंदर ये कर सकते हैं। ठीक है ना? Now, related to this, what questions you can ask? I am just copying it and going to next. Okay. Mr. Sarvana, please mute yourself for a time. Yeah. Now communicating the importance of quality management system. है ना? Importance of what? So now to check
whether this is done or not, communicating the importance of effective QMS and of conforming to quality management system requirements. अब आप क्या पूछोगे उनको, ऑर्गेनाइजेशन को क्या पूछोगे मिस्टर प्रशांत? व्हाट यू कैन आस्क टू द टॉप मैनेजमेंट कि ये जो कम्युनिकेशन है, इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आप क्या पूछोगे? अपना वेरियस मेजर्स क्या के लिए, कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, हाँ, यस, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, और उसकी जो टारगेट है वो जो बॉटम लेवल के भी पीपल है या ऑपरेटर्स है उनके तक पहुंचने के लिए क्या क्या सिस्टम इन प्लेस है आपके यहाँ पे। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि हाउ यू कम्युनिकेट द इंपॉर्टेंस ऑफ QMS टू योर एम्प्लॉइज और इवन जो और रिलेवेंट जो पीपल है उनको आप कैसे बताते हो? नाउ ये जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन जाए, मीन्स टॉप मैनेजमेंट जाए और सबको बताए. इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय दिस स्टैंडर्ड. ये स्टैंडर्ड ये नहीं बोल रहा है कि मैनेजमेंट ने जाके बोलना है, नहीं. पर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, टॉप मैनेजमेंट को, या उन्होंने बोलना चाहिए कि यस वी हैव, उसके अंदर इफ यू आस्क मी, अगर आपने, आई एम टॉप मैनेजमेंट, आपने अगर मुझे क्वेश्चन किया तो आई विल आंसर लाइक दिस. सो वी हैव गिवन दिस responsibility to HR section and respective section heads. ये हमने उनको दिए हैं. ओके. एंड in a monthly review meeting, it is apart from the management review. Okay, management review meeting is different. monthly review meeting हम ले रहे हैं हमारे यहाँ पे to know the status of various objectives, various productivity, quality, safety related issues, उनको discuss करने के लिए. So in the monthly review meeting, I focus on the effectiveness of QMS as well as awareness programs initiated / completed by the respective people. जो मैंने बताया कि HR सेक्शन और रिस्पेक्टिव जो हमारे सेक्शन है उनको हमने दी है, तो मैं चेक करता हूं कि यस उन्होंने अवेयरनेस के लिए क्या क्या किया है ना. और कभी कभी whenever I go for a plant round, I interact with the people, है ना, टू अंडरस्टैंड कि यस वो क्या क्या काम कर रहे हैं रिलेटेड टू द क्वालिटी, रिलेटेड टू द इम्प्रूवमेंट, रिलेटेड टू द कंफर्मिंग मटेरियल, कैसे हैंडल करते हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे क्या डॉक्यूमेंटेशन यूज कर रहे हैं, वो भी हम रूटीन जब मैं कभी प्लांट का राउंड लेता हूँ तब मैं चेक करता हूँ. सो इफ यू गेट दिस आंसर फ्रॉम द ऑडिटी, नाउ यू नो कि यस टॉप मैनेजमेंट इज इन्वॉल्व, है ना, कि टॉप मैनेजमेंट इन्वॉल्व है उसके अंदर. अब नेक्स्ट पे अगर जाते हैं हम, ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है ना, टॉप मैनेजमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करना है लीडरशिप एंड कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू QMS बाय इंश्योरिंग दैट QMS सिस्टम अचीव्स इट्स इंटेंडेड रिजल्ट्स. अब QMS सिस्टम जो है इंटेंडेड रिजल्ट्स अचीव कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे पता चलेगा? आप मैनेजमेंट को क्या क्वेश्चन पूछोगे? यस, टेल मी, आप मैनेजमेंट को क्या क्वेश्चन पूछोगे फॉर दिस पर्टिकुलर क्लॉज, दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, ensuring that quality management system achieves its intended results. तो क्या पूछना चाहिए हमको? सर इसमें हम लोग पूछ सकते कि अपना जो परफॉर्मेंस डाटा है या कुछ कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के डॉक्यूमेंटेशन है, तो उससे अपने को अंदाजा आ सकता है कि वेदर द इंटेंडेड सिस्टम इज बीन इम्प्लीमेंटेड एंड परफॉर्मिंग एज पर इंटेंडेड. यस, है ना, एक रिजल्ट्स आर एज पर द इंटेंडेड. यस, वो तो जब हम बाकी का भी करेंगे या फिर पर्टिकुलर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का करेंगे, सेक्शंस में जाएंगे तो हमको ये पता चल जाएगा. सेकेंडली आप उनको ये भी पूछ सकते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि हाउ यू आर मॉनिटरिंग, है ना, और हाउ यू आर इंश्योरिंग. तो वो आपको आंसर दे सकते कि बाय वे ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग्स.
जो हमने मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग देखी थी ना, बाय वे ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग एंड इंटरनल ऑडिट्स। सो वो बता सकते हैं हम, आप उनको पूछ सकते हैं कि how you ensure that QMS is properly functioning। जरूरी नहीं कि इसी का मैं पूछ लूं कि सिस्टम अचीव इंटेंडेड रिजल्ट वगैरह, नहीं, नॉर्मल एक सिंपल वर्ड में भी आप पूछ सकते हो कि हाउ यू एंश्योर दैट QMS इज प्रॉपरली फंक्शनिंग। ओके, तो अगर आपने मुझे क्वेश्चन किया तो मैं आपको बता सकता हूं कि यस वी आर मीन्स, और आई कैन से दैट यस आई एम मॉनिटरिंग, है ना, आई विल से यू आई एम मॉनिटरिंग इट थ्रू, ठीक है, नंबर 1 थ्रू द MRM मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, नंबर 2 द परफॉर्मेंस जो आपने बताया है ना, परफॉर्मेंस ऑफ द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, हमने सभी सेक्शंस को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं विच अलाइंस विद द क्वालिटी पॉलिसी and the strategic direction of our organization, and every month we are monitoring the quality objective trends, so performance of the quality objectives, क्योंकि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव किसके है, हर एक सेक्शन के, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस है तो हमने उनको MTBF और MTTR दिया है, सो इफ दे आर वर्किंग प्रॉपरली, दे आर adhering to the system, they are carrying out the corrective action, preventive actions, they are adhering to the infrastructural upkeeping of the infrastructural things, it means उनका MTBF कम हो जाएगा, अगर वो इफिशिएंटली काम करते हैं तो उनका MTTR कम हो जाएगा, अगर उन्हें स्पेस प्लानिंग प्रॉपरली करके रखी है तो मीन टाइम टू रिपेयर कम रहेगा, उनके अगर जो पीपल है वो अगर प्रॉपरली स्किल्ड है तो आपको मीन टाइम टू रिपेयर जो रहेगा वो कम रहेगा, इवन MTBF जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, द ड्यूरेशन बिटवीन द मीन टाइम बिटवीन फेल्यूर्स वो बढ़ जाएगा। तो हम उनको बोल सकते हैं कि हम उनका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो है उनके परफॉर्मेंस मॉनिटर करते हैं। देन इंटरनल ऑडिट, हम की जो आउटकम्स है वो उसको हम मॉनिटर करते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो अगर कोई मैनेजमेंट MRM करती है, परफॉर्मेंस QOB का जो है उनको अलग अलग सेक्शंस को जो है उसको मॉनिटर करती है, हाँ, आप ये भी बोल सकते हो इवन कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी हम मॉनिटर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल सकता है कि यस वी मॉनिटर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन थ्रू दिस मैकेनिज्म। तो अगर QMS प्रॉपरली ये कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो डेफिनेटली कस्टमर विल बी सेटिस्फाइड, है ना, इज वन ऑफ द मेजर बेसिकली, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आप इस रिक्वायरमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हो यहां पर, है ना। सिमिलरली ओके, सिमिलरली अगर इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, मिस्टर सरवना, व्हाट क्वेश्चन यू विल आस्क फॉर दिस promoting improvement? प्रमोटिंग इंप्रूवमेंट के लिए आप क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो? Then, sir, future plan and how to extend your आप उनको ये पूछ सकते हो process. कि what activities, है ना, you are Yes. carrying out or directing your people to carry out, है ना, what improvement activities, है ना, आप यूज सकते हैं, you can what improvement activities you are carrying out or directing your people to carry out, क्या कर रहे हैं आप इंप्रूवमेंट के लिए। सो मैं आपको बता सकता हूँ कि यस हमारे यहाँ पे सजेशन, तो एज अ ऑडिटी मैं क्या बोल सकता हूँ कि यस वी हैव अ सजेशन स्कीम, है ना, जिसके अंदर हम प्रोमोट करते हैं कि लोग जो है सजेशन से रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, है ना, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी एंड मोरल, PQCD SM जो रहते हैं, है ना, या इवन पीपल सेफ्टी से शुरू करते हैं, है ना, SPQCDM। तो PQCD SM जो है प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी,
सेफ्टी, मोरल रिलेटेड लोगों के जो सजेशंस होते हैं, हमने एक सजेशन स्कीम यहाँ पे रखी है। सेकेंडली, बाय वे ऑफ काइजन, हम लोगों को ये जो इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज है हम प्रोमोट करते हैं। हमने लोगों को क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स भी दे के रखा है कि एटलीस्ट 1 काइजन और 2 काइजन पर सेक्शन पर मंथ हमारे यहाँ पे जनरेट हो। जो भी अच्छे ये रहते हैं, काइजन्स रहते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हम उसको प्रॉपरली एनकरेज भी करते हैं बाय वे ऑफ मॉनिटरी थिंग और बाय वे ऑफ सर्टिफिकेट्स, है ना, बाय वे ऑफ मोमेंटो। ठीक है, ये सब हम चीजें करते हैं ताकि कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की चीज जो, या इंप्रूवमेंट की, नॉट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात है यहाँ पे, इंप्रूवमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन में आता रहे, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, सेफ्टी रिलेटेड, क्वालिटी रिलेटेड इंप्रूवमेंट आता रहे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है स्ट्रेटेजिक जो हमारी डायरेक्शन है या स्ट्रेटेजिक जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव कर सके विद द इंक्लूजन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द रिलेवेंट पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखिए, अगर आप ऐसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हमको 6-7 में पता चल जाएगा कि यस वेदर ऑर्गेनाइजेशन इज कमिटेड टुवर्ड्स द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और नॉट, है ना। आपको उनको इस तरह से 4-5 क्वेश्चन भी पूछ लोगे तो उनको आपको पता चल जाएगा, है ना। नाउ आप इसके अंदर और एक क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू दिस, promoting the use of process approach and risk based thinking। इसको कैसे करोगे आप, है ना। तो लेट अस चेक दिस। या सो दिस वन है ना, promoting the use of process approach and risk based thinking। सो आप उनको पूछ सकते हैं कि, या फिर आप फिर चेक भी कर सकते हो, नॉट नेसेसरली कि टॉप मैनेजमेंट को सब कुछ चीजें पता हो, है ना, बट उनको एटलीस्ट एक होना चाहिए, है ना, उनका कमिटमेंट होना चाहिए वहां पे, उनको पता होना चाहिए कि यार हाउ वी आर प्रोमोटिंग द यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग। सो आप उनको पूछ सकते हैं हाउ यू प्रोमोट द यूज ऑफ प्रोसेस अप्रोच एंड रिस्क बेस्ड थिंकिंग, आप उनको पूछ सकते हो। अब इसके लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको बोल सकते, एज अ ऑडिटी आई कैन आंसर यू कि यस वी आर फॉलोइंग PDCA approach while designing and managing our बिजनेस प्रोसेसेस, है ना। अब इससे मैं आपको बताना चाहता हूं कि यस एज अ टॉप मैनेजमेंट, है ना, वी आर फॉलोइंग और वी हैव अडॉप्टेड PDCA अप्रोच फॉर डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग आवर बिजनेस प्रोसेसेस। हम चेक करते हैं कि क्या इसके लिए इनपुट लगेगा, उसके लिए जो भी रिसोर्सेस है हम उसको प्लान करते हैं, फिर हम उसको कैरी आउट करते हैं कोई भी प्रोसेस। अब वो कैरी आउट करते वक्त क्या क्या कंट्रोल्स रहने चाहिए बाय वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, बाय वे ऑफ ऑर्केस्ट्रेशंस, है ना, वो हम वहां पे प्रोवाइड करते हैं। जो वो ऑपरेशन है उसको कैरी आउट करने के लिए जो जो ह्यूमन रिसोर्सेस लगते हैं, कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स, वो हम प्रोवाइड करते हैं। देन उस प्रोसेस रिलेटेड अगर कोई रिस्क है, ओके, इफ सर्टन रिस्क आर देयर रिलेटेड टू दैट प्रोसेस, हम उसको एड्रेस करते हैं। देन द आउटपुट्स, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ दैट प्रोसेस, उसके लिए हम मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग करते हैं। उसके लिए हमने उनके KPIs भी बना के रखे हैं। वी मॉनिटर द प्रोसेस and check whether the required objectives are achieved or not, intended results are achieved or not, और जो भी गैप्स रहती है उसके बेस पे हम एक्शंस लेते हैं। So this is how we are promoting the risk based process approach and risk based thinking. So
आप एज अ ऑडिटर यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस आंसर. And whenever you go to the, as audit I am telling you now, whenever go to various sections you can find that yes, they have uh, relevant documentation related to the risk and opportunities in that particular sections, what the actions they are planning to mitigate the risk, it is available with them, and it is being reviewed also time to time by our management representative along with the cross functional team or multidisciplinary team. Okay, whatever the name you can say, आप उसको बोल सकते हो कि हमारा जो अपेक्स ग्रुप है उस रिस्क को असेस करता है डिपेंडिंग ऑन द, एक तो ईयरली हम रिव्यू करते हैं, इन बिटवीन ऑल्सो जो डायनेमिक सिचुएशन है मार्केट की उसके कारण अगर कोई रिस्क क्रिएट हो जाता है तो दैट ऑल्सो वी इनकॉर्पोरेट इनटू आवर डॉक्यूमेंटेशन एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. फिनिश. तो आपको इस तरह से क्वेश्चंस करते आने चाहिए रिलेटेड टू द रिक्वायरमेंट्स, है ना. अब आपको अगर इंटरनल ऑडिटर बनना है, इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटर बनना है, कॉम्पिटेंट इंटरनल ऑडिटर बनना है, तो आपको एक तो इनका नॉलेज होना जरूरी है कि कहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट को हम कैसे क्वेश्चंस में चेंज कर सकते हैं. और जरूरी नहीं है जैसे मैंने बताया कि आप पूरी ABCDEFGH की पूछते रहो उनको कि ये कैसे करते हो, ये कर, दैट इज नॉट इफेक्टिव ऑडिटिंग. वो क्रॉस चेकिंग है, उसके लिए फिर ऑडिटर थोड़ी लगता है ना. ऑडिटर को रिलेट करते आना चाहिए एक दूसरी चीजों को. अब यहां से जब आपने रिस्क बेस्ड थिंकिंग और प्रोसेस अप्रोच का लिया है, गो एंड ऑब्जर्व ऑन द शॉप फ्लोर कि क्या प्रोसेसेस जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही है उसको प्रॉपरली इन्होंने डिजाइनिंग किया है कि नहीं किया है, क्या हर एक सेक्शन में रिलेवेंट रिस्क को एड्रेस किया गया है या नहीं है, वो आपको चेक करना है वहां पर. ठीक है. एनी डाउट्स हियर? ओके. सिमिलर वे, है ना, सिमिलर वे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, टॉप मैनेजमेंट शैल डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कस्टमर फोकस बाय इंश्योरिंग दैट, कि ये अप्लीकेबिलिटी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो है डिटरमाइन हो, अंडरस्टूड हो और कंसिस्टेंटली मेट हो. अब वो आपको पता ही चल जाएगा. अब ये आपको कहां पता चलेगा, कौन सी प्रोसेस में पता चलेगा आपको, ये कहां पे आप कैप्चर करते हो रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स कहां पे कैप्चर होती है, कौन से सेक्शन में जाके चेक कर सकते हो आप इस चीज को. आपको ये चेक करना है कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में. जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू की प्रोसेस है क्या उसके अंदर अब आपको क्वेश्चंस क्या पूछ सकते हो आप, व्हाट क्वेश्चन यू कैन आस्क टू द टॉप मैनेजमेंट इसके ऊपर. यस मिस्टर प्रशांत, व्हाट क्वेश्चन यू कैन आस्क, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैनेजमेंट को इंश्योर करना है ना, या मैनेजमेंट को ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि यस कि दे आर कमिटेड एंड दे आर फोकस्ड, है ना. कस्टमर का जो फोकस है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स के ऊपर जो फोकस है वो उनको डेमोन्स्ट्रेट करना है आपको. तो आप उनको क्या क्वेश्चन पूछोगे, व्हाट विल द क्वेश्चन. सर जैसे कस्टमर की जो जो रिक्वायरमेंट्स आई है इन टर्म्स ऑफ देयर मार्केटिंग ऑर्डर, परचेस ऑर्डर जो है उसको कितने टाइम में आप लोगों ने और कितने क्वालिटी के साथ में फुलफिल का, कुछ कंप्लेंट आए तो वो कंप्लेंट को. ओके. नहीं देखिए, इसमें अपने को टॉप मैनेजमेंट के पास वो डेटा नहीं रहेगा, ठीक है ना. टॉप मैनेजमेंट वो लेके नहीं बैठा, उनको बस वो डेमोन्स्ट्रेट करना है. तो आपके क्वेश्चंस जो मार्केटिंग को आप पूछोगे दैट विल बी डिफरेंट, है ना. जब आप मार्केटिंग का ऑडिट करने जाओगे या सेल्स सेक्शन का ऑडिट करने जाओगे, दैट टाइम योर क्वेश्चंस विल बी डिफरेंट एंड योर एक्सपेक्टेशन विल बी डिफरेंट. आप टॉप मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि उनके पास वो पूरा डेटा रहे कि पिछले महीने कितनी डिलीवरी फेलियर्स हुए, क्या हुए. यस, उन्होंने रिव्यू किया होगा बट ऑन देयर टिप वो नहीं रहेगा, है ना. आप उनको क्वेश्चंस अलग तरह के पूछने पड़ेंगे. आपको ये पूछना पड़ेगा कि कैसे वो दे आर कमिटेड, कैसे उन्होंने रिसोर्सेस प्रोवाइड किए हैं,
क्या उन्होंने सिस्टम बना के रखा है अपने ऑर्गेनाइजेशन में ताकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कस्टमर रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट है वो अंडरस्टूड हो, डिटरमाइंड हो और कंसिस्टेंटली मीट हो, इसके लिए उन्होंने क्या मैकेनिज्म बना के रखा है ना? तो योर क्वेश्चंस विल बी हाउ यू इंश्योर दैट ऑल कस्टमर है ना, ऑब्लिक लीगल कर देना, लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट, है ना, डिटरमाइंड एंड मेट भी कर सकते हो आप, इस तरह का क्वेश्चन होना आपका. नाउ व्हाट आई विल आंसर टू ऑन दैट? नाउ माय आंसर एज अ ऑडिटी विल बी एज अ टॉप मैनेजमेंट, व्हाट आंसर यू कैन एक्सपेक्ट. मुझे आपने अगर पूछा कि मैं कैसे इंश्योर करता हूं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट डिटरमाइन की गई है, तो मैं बताऊंगा आपको वी हैव अ कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू प्रोसेस इन प्लेस. इतना मैनेजमेंट को तो पता होना पड़ा है ना कि किस तरह से होता है, कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू की प्रोसेस है. कस्टमर ऑर्डर आता है, वी रिसीव ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, है ना, मार्केटिंग सेक्शन रिव्यूज द रिक्वायरमेंट एंड सेंड इट टू टेक्निकल ऑब्लिक. अब डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, है ना, कि क्वालिटी है, टेक्निकल है, तो उनको भेजेंगे वो टेक्निकल क्वालिटी सेक्शंस फॉर देयर व्यूज, उनके व्यूज के लिए भेजते हैं. एंड वंस इट इज एक्सेप्टेड टेक्निकली, कमर्शियली, हम कमिट करते कि यस वी कमिट टू सप्लाई द मटेरियल. ओके, उसके बाद हमने हमारे यहां पे ईआरपी सिस्टम लगा के रखा है जिससे कि ऑर्डर की जो ऑर्डर डेटा जो होता है वो पंच हो जाता है उसके अंदर, है ना, ऑर्डर डाटा इज एंटर्ड एंड इट इज कम्युनिकेटेड टू प्लानिंग, क्वालिटी, प्रोडक्शन. आपको अल्टीमेटली चाहिए क्या कि ऑर्गेनाइजेशन को तो इतना तो टॉप मैनेजमेंट को पता रहता है ना, ऐसा नहीं है कि ये पता नहीं रहेगा, बिल्कुल रहना चाहिए टॉप मैनेजमेंट को पता कि आपके यहाँ पे ऑर्डर की प्रोसेसिंग कैसे होती है, कितने ऑर्डर आए, कितने प्रोसेस किए, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो डाटा आप मार्केटिंग से ले लो. बट एज अ टॉप मैनेजमेंट मुझे ये पता होना चाहिए कि यस मेरे यहाँ पे सिस्टम क्या है. इज इट अ मैनुअल सिस्टम? तो मैं आपको बताऊंगा कि यस मार्केटिंग के पास जब डेटा आता है तो फिर वो बाय वे ऑफ ईमेल, जब ऑर्डर आती है बाय वे ऑफ ईमेल प्लानिंग को प्रोड्यूस करती है. प्लानिंग एक्सेल शीट उन्होंने मेंटेन करके रखा है, उसके अंदर वो एंटर करती है, उस पर्टिकुलर डेट तक देना है, उसके बेस पे वो पूरा रिवर्स प्लानिंग करती है प्लानिंग डिपार्टमेंट अपना, कब कब उनको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए. सिमिलर थिंग हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आ जाती है और फिर वो प्रोडक्शन प्लान के साथ क्वालिटी और रिलेवेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट किया जाता है ताकि मटेरियल जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बने, टेक्निकली, क्वांटिटी वाइज और डिलीवरी वाइज, जिस जो हमारे कमिटमेंट्स है वो फुलफिल हो. इस तरह से हम ये इंश्योर करते हैं. फिनिश. यू शुड बी सेटिस्फाइड एज ऑडिटर विद दिस आंसर. ठीक है ना? नाउ सेकंड क्या बोल रहे हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज. तो अगेन यू कैन इफ यू आस्क मी ओके, अदरवाइज आपको पता है कि रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज जो है आपने कहीं ना कहीं एड्रेस की है. तो आप अगर मुझे पूछोगे, इफ योर क्वेश्चन विल बी, if your question is the risk and opportunities that can affect conformity to products are determined and addressed, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, have you or have your organization determined the risk and opportunities related to product conformity? तो मेरा आंसर क्या रहेगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा नहीं यहाँ पे. ओके ठीक है, अरे यस we have determined it as it is very important, है ना, because it affects the customer satisfaction also, it affects the organization's costing also, है ना, organization performance को भी impact करेगा ये. that's why we have determined it and you can find it
एट रिलेवेंट सेक्शंस, है ना। और मैं आपको ये बोल सकता हूं कि यस, यस मिस्टर प्रशांत। हम लोग सर हम टॉप मैनेजमेंट की ये भी पूछ सकते हैं ना कि बिजनेस रिस्क असेसमेंट किया है क्या आप लोगों ने? हाँ हाँ यस, वो तो आपको पहले में आ जाएगा आपके ये जो है ना हमारा 5.1, वहां पे भी उन्होंने बोला ही है ना, रिस्क एसोसिएटेड विथ। ओके, और उसकी रिव्यू फ्रीक्वेंसी क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे शेयर की ये है देखिए, उसके वो ऊपर? वाला अगर आपको बिजनेस रिस्क पूछना है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, मीन्स आप मैनेजमेंट को पूछ सकते हो। इट इज नेवर कि यार आपको फ्लो वाइज ही जाना है, नो वे। आप उनको पूछ सकते हो कि आपके बिजनेस रिलेटेड क्या क्या रिस्क है, वो तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आता ही है ना वो। तो आपका क्वेश्चन सही है, आप उनको पूछ सकते हो हम्म, बिल्कुल कि ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो रिस्क है आपने वो डिटरमाइन की है क्या, है ना। या उसमें के साथ में एक एसोसिएटेड क्वेश्चन होता है कि किस टाइप के रिस्क हम लोगों ने बिजनेस साइकिल में पकड़ी हुई है, हाँ मतलब बिल्कुल राइट फ्रॉम बिल्कुल, मार्केटिंग यस। टू बाकी फंक्शंस तक। हाँ हाँ यस यस। तो वो क्लासिफिकेशन से भी एक आइडिया आ जाता है मैनेजमेंट का, ओवरऑल व्यू कैसा है, वो कैसे सोचती है हाँ और उसके अगेंस्ट उनके क्या क्या एक्शन प्लान है। बिल्कुल, अब इसमें होता क्या है, सिर्फ मैनेजमेंट के पास हो सकता है तब आपके पास प्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट रहे ना रहे, दैट इज डिफरेंट थिंग, है ना। पर वो आपको इतना बताना चाहिए उन्होंने कि यस वी हैव कंसीडर द रिस्क एसोसिएटेड विथ ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस, है ना। और उसमें से कुछ तो उनको आना ही चाहिए, ठीक है। जैसे एक रिस्क रहता है आपका, जैसे आपका अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है तो आप उनको एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप अगर एक्सपोर्ट में जाते हो, देर इज वन रिस्क, है ना, जो हमारा करेंसी एक्सचेंज का रेट होता है, दैट फ्लक्चुएशन, इसके अंदर बहुत बड़ा रिस्क रहता है ना। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो ऑर्डर कमिटमेंट होती है एक पर्टिकुलर रेट पे होती है, और जब आप उसको डिलीवर करते हो उस टाइम का रेट जब रहेगा, अगर वो डाउन चला गया फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए तो लॉस हो जाता है ना। जैसे बीच में एक बार हुआ था कि डॉलर टू रूपी वॉज सडनली चेंज हो गया था, मीन 50 समथिंग था और वो एक्सट्रीमली 60 65 पे चला गया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जो एक्सपोर्ट करने वाले थे, किसमें, रुपीज में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको तो फायदा है, क्योंकि आपको क्या होने वाला था, 65, जितने डॉलर का आपने कमिट किया था, $1000 का, तो आपको यहाँ पे 65,000 मिल गए, ठीक है, वो तो आपका एप्रिसिएशन हो गया। बट उसी के अगेंस्ट में आप सोचो कि आपने अगर रॉ मटेरियल कोई बुलाया होगा तो आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ा होगा रुपीज में, क्योंकि पहले आपको लगा था कि मैंने $1000 की चीज मंगाई है तो आपको $50,000 देना था। अब आपने कमिटमेंट तो $1000 का है आपका, और एक्सचेंज रेट चेंज हो गया 65 पे, $1 इक्वल्स टू 65 रुपीज, तो $1000 मतलब 65,000 रुपीज। तो पहले आपको जो $50,000 देना था, अब आपको 65,000 रुपीज देना पड़ रहा है। तो एक रिस्क होती है कौन सी, एक्सचेंज रेट्स की एक्सपोर्ट में। तो आप उनको क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, है ना, कि क्या आपने रिस्क, जैसे आपने बोला कि यस, क्या आपने रिस्क एसोसिएटेड चेक की है, क्या आप कुछ रिस्क बता सकते हो। जैसे एक्सपोर्ट रिलेटेड आपने बोला कि आपका फोकस एक्सपोर्ट पे है ना। बट जैसे कोई रेगुलेशंस होती है, कोई यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशंस है, या फिर आपको यूएस में मटेरियल भेजना है तो कुछ पर्टिकुलर उनके रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसकी रिस्क आपने क्या कंसीडर की है, क्योंकि मार्केट एवर इवॉल्विंग है ना। या WTO है जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, क्या उनके ये आपने चेक की है, या आपका जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं, है ना, आपके जो इश्यूज है, पॉलिटिकल इश्यूज है, या फिर आपके रिलेशंस है, पॉलिटिकल रिलेशंस है, बायलैटरल रिलेशंस है विद दैट पर्टिकुलर कंट्री, क्या आपने उसको एज अ रिस्क कंसीडर किया है। तो ये डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आपको लिटरली इससे ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन का एक इंसाइट मिल जाता है अच्छे से, और फिर ग्राउंड पे जाके आप चेक कर लो, है ना। और ये चीजें छुपती नहीं है, अगर आपने वो रिस्क कंसीडर नहीं किया, आपने पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया होगा ना, तो कहीं ना कहीं पे आपको कोई ना कोई प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव मीट होते हुए नहीं दिखेगा, है ना कहीं आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगा कि नहीं, यहाँ पे ये इश्यू हो गया है। जैसे कि अगर कोई रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज है, जिसका रिस्क है कि यस अगर ये प्रॉब्लम हो गया तो अपने को इंपोर्ट में इश्यू आ जाएगा, एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सकता है, तो कॉस्ट में इंपैक्ट पड़ेगा, और डिले भी हो सकता है, ऑर्डर कैंसिल भी हो सकता है। तो आपको देखना कि जहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी मीट नहीं की है,
आपको ये ट्रेल करते हुए जाना है ना। जब भी हम ऑडिट करते हैं ना, इट इज इंटर रिलेटेड। प्रोडक्शन में अगर आपको पता है कि इस पर्टिकुलर जगह पे प्रोडक्शन कम हुआ, आप उनको पूछ सकते हो व्हाई यू आर नॉट अचीव्ड द प्लान प्रोडक्शन। फिर वो बताएंगे कि मेंटेनेंस ब्रेकडाउन इतना था, ये ब्रेकडाउन इतना था, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इतना था। तो आपको पता चला कि 30% ऑफ द लॉस आई एम सेइंग इज बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। तो आप फिर उनको और पूछोगे व्हाई द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, हैव यू चेक्ड? तो बताएंगे कि यस, हमने परचेस से पूछा था तो वहां से डिले हो गया था। अब आपके पास एक पॉइंट हो गया कि ये डिले क्यों हुआ था। फिर आप परचेस के पास जाओगे, आप उनसे पूछोगे कि ये डिले क्यों हुआ था, या जो ऑडिटर जाने वाला है उनको आप बताओगे। अगर उन्होंने बताया कि बिकॉज ऑफ दिस इश्यू डिले हुआ था, तो आप उनको पूछ सकते हो कि आपकी जो रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज आपने एड्रेस की है ना, क्या आपने एक पर्टिकुलर थिंग को एज ए रिस्क कंसीडर किया था या नहीं किया था। तो अगर उन्होंने नहीं किया तो डेफिनेटली फिर वहां पे आपके पास पॉइंट है कि इस पर्टिकुलर थिंग को आपने रिस्क एज ए रिस्क नहीं कंसीडर किया था, जिसके कारण आपका लॉस हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको ये पूरा एक दूसरे के साथ ट्रेस करना है। तो रिक्वायरमेंट समझ लेना चाहिए हमको कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या करना है। ठीक है। जैसे यहां पे देखिए, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी आ गया, प्रोडक्ट कन्फर्मेशन, द फोकस ऑन एनहांसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज मेंटेन। तो आप उनको अगेन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि हाउ हाउ यू आर कीपिंग द फोकस, है ना, हाउ फोकस यू आर इन एनहांसिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और फर्स्ट थिंग तो आप ये पूछ सकते हो कि हाउ यू चेक द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हाउ यू मॉनिटर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और फिर उसको एनहांस करने के लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिए। तो अगर वो आपको बताते हैं, देखिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन अगर एनहांस करना है, सो देयर इज अ क्वालिटी, देयर इज अ कॉस्ट, है ना, देयर इज अ डिलीवरी एंड द सर्विस टू द कस्टमर। तो अगर आप एज अ टॉप मैनेजमेंट में आपको बताता हूं कि वी आर मॉनिटरिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन internally by way of checking the quality rating, delivery rating. We are continuously taking various improvement steps, increasing efficiency of the products, maintaining our machines properly, reducing the breakdown, reducing the spares consumption, thereby making our product cost competitive. हम हमारे प्रोडक्ट को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बना रहे हैं। So customer will be satisfied on that front also, cost front also. Then we have made a customer visit calendar. Every month one customer, our team, technical team and the marketing team are visiting, asking them for any improvement required on the quality front, on the delivery front, and we are closely interacting with them so that we can supply them required material। इस तरह से हम हमारा फोकस जो है वो कस्टमर के ऊपर बनाए रखते हैं। एंड विथ ऑल दिस एक्टिविटीज certainly our customers are satisfied and we are monitoring their satisfaction index by yearly feedback system also. We are monitoring repetitive orders, कितना रिपीट ऑर्डर्स हमको मिलता है। वी आर मॉनिटरिंग द सेल्स क्वांटिटी ऑल्सो, कि इस पर्टिकुलर कस्टमर के पास क्या क्या कितना सेल्स क्वांटिटी जा रहा है। सो दिस वे, तो अगर मैं एज अ टॉप मैनेजमेंट आपको ये सब कुछ बता सकता हूं, इसका मतलब वी आर फोकस ऑन एनहांसिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है। तो आपको पता होना कि जब मैं टॉप मैनेजमेंट का ऑडिट करने वाला हूं तो क्लॉज नंबर 5 इज अप्लीकेबल। अब उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस है, इसमें से आप 10 क्वेश्चन का एक चेकलिस्ट बना के लेके जाइए। अगेन आई एम टेलिंग यू, एक इसमें जरूरी नहीं कि आप सबका सब कर पाओ। चेकशीट एज अ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव या कोऑर्डिनेटर, उन्होंने तो पूरे क्वेश्चंस की बना लेनी चाहिए। व्हेन यू गो देयर एज अ ऑडिटर, आपने उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है वो जितना टाइम अलाउ करता है उसमें मैक्सिमम कवर कर लेना चाहिए, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना चाहिए। इट इज ऑलवेज बेटर कि अपार्ट फ्रॉम द जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव बना के रखते हैं अपने पास चेकशीट, वो तो है, बट एज अ ऑडिटर आपने खुद की अपनी एक क्वेश्चन चेकशीट बना लेनी चाहिए कि हाँ ये रिक्वायरमेंट्स है, मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा उनसे, ये कंप्लायंसेस देखूंगा मैं वहां पर, है ना। फिर अगेन क्वालिटी पॉलिसी रिलेटेड, एस्टेब्लिशिंग एंड कम्युनिकेटिंग
हमने इसके ऊपर तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है पहले भी कि हाउ द क्वालिटी पॉलिसी इज कम्युनिकेटेड, है ना, इट इज अवेलेबल है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, कम्युनिकेट कैसी की है, अब अंडरस्टूड है कि नहीं, उसके लिए हमने ये भी देखा था कि आप क्या करोगे, इंटरव्यू लोगे कुछ लोगों का। अब ये जो चीज है ना, इट इज नॉट द टॉप मैनेजमेंट ऑडिट, ओके। ये आपको क्या करनी है, जब आप नॉर्मली इनका ऑडिट करोगे, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का आपके वहां पे, आप वहां पे ये सब कुछ पूछ लो, है ना, ये टॉप मैनेजमेंट को नहीं पूछना है ये सब चीजें, ठीक है। हाँ, आप उनको ये पूछ सकते हो कि क्वालिटी पॉलिसी जब डेवलप की थी, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द क्वालिटी पॉलिसी, या आप उनको ये पूछ सकते हो कि क्वालिटी पॉलिसी जब आपने बनाया था तो किस तरह से, व्हाट अप्रोच यू हैव फॉलोड, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वालिटी पॉलिसी है ना, इंश्योरिंग द, सेकंड पॉइंट देखिए बी नंबर, ensuring that quality policy and quality objectives are established for QMS and are compatible। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो उनको कि आपने क्वालिटी पॉलिसी कैसे डेवलप की, है ना, आपने क्वालिटी पॉलिसी डेवलप करने के वक्त कौन कौन लोग आपके इन्वॉल्व थे, हु आर ऑल आर इन्वॉल्व, आपने कैसी क्वालिटी पॉलिसी सेट की, है ना, क्या आपने 9001 की रिक्वायरमेंट्स और जो आपकी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंसीडर किया था क्या क्वालिटी पॉलिसी के वक्त, ये आप उनको पूछ सकते हैं, बिकॉज क्वालिटी पॉलिसी जो है ये टॉप मैनेजमेंट के परव्यू में है, वो आप क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो, है ना। बाकी फिर क्वालिटी पॉलिसी के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन है कि वो पर्टिकुलर थिंग सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आपको फिर वो जो हमारे मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव है, उनको भी आप पूछ सकते हो, या इवन मैनेजमेंट को आप बोल सकते हो कि आपकी क्वालिटी पॉलिसी में तो ये कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए कोई कमिटमेंट ही नहीं है, वहां पे कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक है, वहां पे कमिटमेंट रहना चाहिए ना, द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू कंटिन्यूअली इंप्रूव इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, तो और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोसेसेस बाय वे ऑफ दिस, ऐसा एक कमिटमेंट होना चाहिए, वो तो आपके इसमें दिख ही नहीं रहा है, तो ये आप उनके ऊपर पूछ सकते हो, आप एक क्वेश्चन टॉप मैनेजमेंट को पूछ सकते हो। देन कम्युनिकेटिंग द क्वालिटी पॉलिसी, क्वालिटी पॉलिसी को कम्युनिकेट करना, अब ये मैनेजमेंट को आप मत पूछिए, है ना, हमने उनको वहीं पे पूछ लिया था कि हाउ यू आर इंश्योरिंग कि जो हमारे क्यूएमएस जो है वो लोगों को प्रॉपरली कम्युनिकेट हो जाए क्यूएमएस की रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्वालिटी पॉलिसी आप एचआर को जाके पूछ सकते हो कम्युनिकेटिंग का, या एमआर को पूछ सकते हो, एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो बाय वे ऑफ कहाँ पे डिस्प्ले की गई है, एंड बाय वे ऑफ इंटरव्यूइंग आप उसको कंप्लायंस चेक कर सकते हो कि ये लोगों को कम्युनिकेट की है, अंडरस्टूड हुई है कि नहीं है लोगों में, है ना। तो ये चीजें आप वहां पे इस तरह से चेक कर सकते हो। अब आते हैं प्लानिंग पे, यहां तक किसी को डाउट 5 में? ओके, है ना। अब प्लानिंग में अगर हम आते हैं क्लॉज नंबर 6 में, तो जैसे इसमें एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, अब आपको ये किसको पूछना है, यू कैन आस्क दिस टू द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो, एंड यू कैन चेक इट विथ ऑल द रिलेवेंट सेक्शंस। तो आपको क्या करना है, ये आपको एमआर को पूछना है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव को, कि बिकॉज इट्स अ प्लानिंग ऑफ द क्यूएमएस नाउ, है ना, तो उसके अंदर एक्शंस टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, आपको उनको पूछना है कि आपने ये डॉक्यूमेंट करके रखी है, एमआर को पूछना है कि हैव यू डॉक्यूमेंटेड ऑल द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज, अगर वो बोलते कि यस वी हैव डॉक्यूमेंटेड, एंड अगर उनके पास सभी की मास्टर्स है तो ऑल थिंग्स यू कैन चेक विद देम इटसेल्फ, एंड कुछ चीजें आपको लगता है कि नहीं मैं जाके वेरीफाई करना चाहता हूं एट दैट पर्टिकुलर रिलेवेंट सेक्शन, स्टोर्स में, परचेस में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में, कैलिब्रेशन में, तो डिस्पैच में, वेयर हाउस में, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपने यहाँ पे, और वहां जाके वेरीफाई कीजिए कि क्या उन लोगों को इसके बारे में पता है ना, क्या जो एक्शंस उन्होंने बोला है कि हम ये एक्शंस लेने वाले हैं, क्या वो एक्शंस ली गई है वहां पर, उसका स्टेटस क्या है, वो तो आपको रिलेवेंट सेक्शन में जाके पता चलेगा, है ना, वो तो आपको रिलेवेंट सेक्शन में जाके ही पता चलेगा।
अब वो एमआर के पास कैबिन में बैठ के आपको उसके रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे, है ना। तो आपका अप्रोच भी थोड़ा सा उसी तरह से होना चाहिए कि इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन, कि शॉप फ्लोर या फिर जहां पे एक्चुअल काम होता है, डिस्पैच है तो डिस्पैच सेक्शन, क्वालिटी है तो क्वालिटी, प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन, है ना, मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस सेक्शन में जाके देखे और वहां पे चेक करें कि क्या ये जो हमने रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी जो हमने कंसीडर की है वहां पे क्या स्टेटस है ना। जैसे कि हम बोलते हैं कि स्किल्ड मैन पावर फॉर कैरिंग आउट द मेंटेनेंस एक्टिविटी इज वन ऑफ द रिस्क, की अनअवेलेबिलिटी ऑफ द स्किल्ड मैन पावर। एक्शन तो बोल दिया हमने कि नहीं हम तो स्किल्ड लोग लेंगे, हम उनको रिटेन करने के लिए ये एक्शंस लेंगे, ठीक है, उनको ट्रेन करेंगे, सब कुछ बोल दिया आपने, बट एक्चुअली किया कि नहीं किया। अब वो जाके एचआर में चेक कर लो उनके ट्रेनिंग रिकॉर्ड, उनकी जो स्किल मैट्रिक्स है वो मेंटेनेंस सेक्शन में जाके चेक कर लो, वहां के जो लोग अवेलेबल है उनका इंटरव्यू ले लो, आप उनसे पूछो कि आप क्या काम करते हो, आपका स्किल जो आपका क्वालिफिकेशन लेवल क्या है, आपका कॉम्पिटेंस लेवल क्या है ना। सेकेंडली अगर आपके लोग कॉम्पिटेंट नहीं है तो डेफिनेटली आपके जो एमटीबीएफ एमटीटीआर में जो है इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि वो अचीव नहीं हो रहे तो इसका मतलब रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर नहीं है, सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तभी तो हो रहा है। तो आइदर हमारे पास लोग ही नहीं है या फिर पर्टिकुलर मटेरियल नहीं है। मटेरियल क्यों नहीं है? क्योंकि उसको प्लान नहीं किया। प्लान क्यों नहीं किया फिर मटेरियल को? अगेन हो सकता है कि जो पर्सन है उसको नहीं समझ में आ रहा है इसलिए प्लान नहीं किया। अगेन लैक ऑफ कॉम्पिटेंट पीपल पे जाके बात आ सकती है, आइदर ऑफ द परचेस सेक्शन और ऑफ द मेंटेनेंस सेक्शन। तो इस तरह से आपको इसको ट्रेल करते जाना है, यहां से वहां यहां से वहां, ये सब इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस है ना। तो ऑडिटिंग उस तरह से होना चाहिए। गॉट इट? तो रिक्वायरमेंट समझने का, उसके ऊपर क्वेश्चंस तैयार करने का, है ना। जैसे एक्शन है, जैसे मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया उसको कि इफेक्टिवनेस ऑफ द एक्शन, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस एक्शन। तो आपने अगर कोई एक्शंस लिया है रिस्क को एड्रेस करने का, इसका मतलब उस रिस्क के कारण आपके यहाँ पे कभी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, अगर आपने प्रॉपर एक्शन लिया है उसको प्रिवेंट करने का, तो है ना। और अगर वो प्रॉब्लम आया इसका मतलब आपने आइदर जो एक्शंस हमने डिसाइड किया वो प्रॉपर नहीं है, या फिर जो एक्शंस लेनी थी वो प्रॉपरली ली नहीं है हमने। दैट्स व्हाई यू नीड टू चेक कि ये जो रिस्क के ऊपर जो एक्शंस हमने लिखी है वो प्रॉपरली इफेक्टिव है या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है ना। 6.2 क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स प्लानिंग, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव देम, दिस नीड्स टू बी चेक्ड in every section, almost every section. This clause is applicable to every section. आप कोई भी सेक्शन का ऑडिट करने जाओ, ठीक है ना, दिस इज अप्लीकेबल। ये चीज आपको चेक करना ही करना है। ये ऐसी चीज है, ये क्वेश्चन आएगा, बट इसको आप सेकेंडरी रखना, है ना। सेकेंडरी इन द सेंस आप शुरू भी कर सकते हो इससे, आपको अगर अंडरस्टैंड करना है प्रोसेस को तो आप इससे भी शुरू कर सकते हो कि आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप उसको कैसे अचीव करना चाहते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन वो पर्टिकुलर सेक्शन को समझने के बाद आप इस तरह से भी चालू कर सकते हो। रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज ऑलमोस्ट सभी सेक्शन के लिए अप्लीकेबल, आप सभी सेक्शन को पूछ सकते हो क्वेश्चंस जब भी ऑडिट में जाते हो, तो है ना, कि आपने आपके प्रोसेस रिलेटेड रिस्क जो है क्या उसको आपने इवेल्युएट करके रखा है, वो आप उनको पूछ सकते हो। So the organization shall establish quality objectives at relevant function level processes needed for QMS. और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स कैसे होने चाहिए? क्वालिटी पॉलिसी से कंसिस्टेंट, मेजरेबल, अप्लीकेबल रिक्वायरमेंट को कंसीडर करना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। अब आप पूछिए क्वेश्चन वहां जाके सेक्शन में, आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आप उसको कैसे मॉनिटर करते हो, आपने उसको कैसे कम्युनिकेट किया है लोगों को। आप 2-4 लोगों को पूछ के इंटरव्यू ले लो वहां पर, ये हमने डिस्कस भी किया था पहले। यू विल आस्क देम कि आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो एचआर पर्सन बताना चाहिए ना कि यस, ट्रेनिंग आवर्स पर पर्सन पर मंथ और ट्रेनिंग प्लान वर्सेस अचीव्ड, ये हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है।
है ना, या फिर स्प्रेड ऑफ द ट्रेनिंग मीन्स कितना कवरेज है, ट्रेनिंग कवरेज इज वन ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव। और डेफिनेटली इसका डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको दिखाना ही पड़ेगा उनको, है ना। तो आपके पास ये चीज सब चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो आप उनको पूछिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये सर एवरी सेक्शन के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और when we plan to achieve its quality objectives, the organization shall determine what will be done. तो what resources are required, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कब कंप्लीट होंगे, कब कैसे इवेल्युएट रिजल्ट होंगे, तो आप उनको पूछना है ये सब चीजें। तो आपको उनका जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का जो डॉक्यूमेंट रहेगा उसके अंदर ही दिख जाएगा आपको, है ना। तो अगर एक सेक्शन का क्वालिटी ऑब्जेक्टिव का डॉक्यूमेंट है, अगर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का स्टेटस जो मॉनिटर करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर मेंटेनेंस इट इज मीन टाइम टू रिपेयर MTTR उनका, या ब्रेकडाउन आवर्स पर मंथ भी ले सकते हो टू स्टार्ट विथ, जैसे ब्रेकडाउन आवर्स, है ना। या फिर जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उनका उनके यहाँ की जो सेक्शंस है, वेरियस सेक्शंस है ना, तो उनके हो सकते हैं कि हमारा जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स है कि हमारा जो कोर्स कंप्लीशन है ना, कोर्स कंप्लीशन है, प्रैक्टिकल जो है हमारे प्लान वर्सेस अचीव्ड, इंटरनल एग्जामिनेशन प्लान वर्सेस अचीव्ड, ये सब हमारे क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं आपके, है ना। द नंबर ऑफ पीपल जो है हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन के आप परसेंटेज वाइज भी कर सकते हो कि इतने लोग एटलीस्ट इसके ऊपर होने चाहिए। तो अगर आपका टीचिंग अच्छा है, आपका इवेल्युएशन मेथड अच्छा है, तो फाइनल के रिजल्ट भी आपके अच्छे आएंगे। तो उस तरह से आप आपके क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स ये कर सकते हो, है ना। इवन एनरोलमेंट ऑफ द पीपल उसको मॉनिटर कर सकते हैं हम। हाँ, वो डाटा भले ही आपके पास ईयरली रहे बट यू कैन ऑलवेज मॉनिटर एज अ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये MTTR है तो इसके अंदर ये होना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, तो सेक्शन हेड वगैरह का नाम जो है ना, जो ईयर है किसके लिए अप्लीकेबल है, कब तक के लिए अप्लीकेबल है, तो आप वो पीरियड डाल सकते हो, है ना। और फिर यहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि ये हमारा टारगेट है एंड ये हमारा स्टेटस है, उसका ग्राफ बनते रहना चाहिए। इधर मंथ वाइज रहेगा, ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है। और यहाँ पे टेबुलेटेड डाटा भी होना चाहिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का देखने के लिए, है ना। तो आप ये डॉक्यूमेंट जब किसी को दिखा दोगे कि दिस इज आवर क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, ये हमने दिया हुआ है अप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, और हम हर 3 महीने में इवेल्युएट भी करते हैं कि ये क्रॉस हो रहा है या बहुत ज्यादा नीचे है, तो हम इसको और स्ट्रिंजेंट टारगेट कर सकते हैं। मीन टाइम टू रिपेयर, आज अगर हमारा 1 आवर का मीन टाइम टू रिपेयर है, नेक्स्ट विल बी 45 मिनट्स, अवर टारगेट इज 45 मिनट्स। अगर हमने 45 के नीचे अचीव किया कंटिन्यूअसली, हम देखते हैं एवरेज कितना आया, फिर हम नेक्स्ट टारगेट ओ रखते हैं 40 मिनट्स का या 30 मिनट्स का। सो दिस इज हाउ वी कंटिन्यूअली स्ट्रेच अवर टारगेट। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है किसी सेक्शन से, तो आप सेटिस्फाइड होना चाहिए एज ऑडिटर कि यस प्रॉपरली डन। उनके जो लोग हैं सेक्शन के लोग, उनको पूछना चाहिए कि कैसे करते हो आप, ये जो है ये मॉनिटर मीन्स आप लोगों को पता है या नहीं पता है, कहाँ पे डिस्प्ले किया गया है, ये चीजें आप उनको पूछ सकते हो। एंड देन कम प्लानिंग ऑफ चेंजेस। सो ये प्लानिंग ऑफ चेंजेस अगेन इट इज रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट कंट्रोलर वगैरह जो है, वहां पे आप उनको पूछ सकते हो। मैक्सिमम चीजें MR के पास मिल जाती है हमको, है ना। या फिर वहां पे अगर डिजाइन डिपार्टमेंट्स वगैरह, डिजाइन एंड प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स अगर है आपके पास, तो आप उनको भी पूछ सकते हो। बट ये प्लानिंग ऑफ चेंजेस जो है इट इज रिलेटेड टू द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, तो आप ये MR से पूछोगे तो बेटर रहता है ना। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, एक्चुअल जहां जहां पे चेंजेस हुए हैं वो फिर आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके वेरीफाई कर सकते हो, है ना। वो पर्टिकुलर सेक्शन में जाके आप वेरीफाई करा लो, ठीक है। सो दिस इज, इसी तरह आप क्या करो, फॉर बिकमिंग अ इफेक्टिव इंटरनल ऑडिटर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्लॉजेस इज इंपॉर्टेंट, जो हमने गए थे फुल सभी क्लॉजेस से। अब आपके लेवल पे आपको क्या करना है, ISO 9001 के स्टैंडर्ड में जो दिया है, तो एवरी डे,
है ना, एवरीडे सिर्फ एक पेज की रिक्वायरमेंट देखिए आप, या फिर एटलीस्ट एक क्लॉज उसके सब क्लॉज उसके ऊपर ही फोकस कीजिए. हार्डली इट विल टेक 30 डेज और मैक्स टू मैक्स 60 डेज, मैक्स टू मैक्स 60 डेज आई एम सीइंग, है ना. 60 दिन के अंदर हर एक क्लॉज, जैसे अभी यहाँ पे है ना 6, है ना, इसके अंदर 6.1 एंड 6.1.2 ये दो हमको लग रहा है कि एक दूसरे के रिलेटेड है, तो एक दिन सिर्फ इसको ही पढ़ो. इट विल नॉट टेक मोर देन 15 मिनट्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड. सो एवरी डे यू हैव टू गिव ओनली 15 मिनट्स. ये 15 मिनट के अंदर या मैक्स टू मैक्स 30 मिनट्स, आप 30 मिनट्स आपके इसका स्पेयर कीजिए इसमें. ये इतना ही क्लॉज है, इसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़िए, इसके अंदर क्या क्या जरूरत है, क्या क्वेश्चन हम बना सकते हैं, है ना, किस तरह से इसको एड्रेस भी कर सकते हैं. इट इज नॉट ओनली क्वेश्चनिंग. अगर आपको एज ए इम्प्लीमेंटर भी काम करना है 9001, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि इसको मैं किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकता हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन में, इस रिक्वायरमेंट को किस तरह से मैं मीट कर सकता हूँ. और आपको फिर 30 मिनट्स के अंदर समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस वगैरह बनाना, सब आपको किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन बनाना समझ में आएगा. फिर नेक्स्ट डे 30 मिनट्स फॉर दिस 6.2.1 6.2.2, फिर 6.3 जो है नेक्स्ट डे लीजिए. अब एक क्लॉज जो 6 नंबर का है, इट इज 3 डेज, 3 डेज में कवर हो गया आपका क्लॉज. सोचो आप, लीडरशिप का जो क्लॉज था हमारा, है ना, इट हैज 5.1 एंड 5.1.2, तो इसको आप एक दिन कवर कीजिए. क्वालिटी पॉलिसी जो पॉलिसी है 5.2 उसको एक दिन में कवर किया हमने, और 5.3 एक दिन में कवर किया. तो 6 दिन के अंदर आपके दो क्लॉज कवर हो गए. सोचो आप, 5 एंड 6, है ना, 6 दिन के अंदर. तो ऐसे नॉट मोर देन 60 डेज मीन्स 8 हफ्ते के अंदर आपको एक एक रिक्वायरमेंट डिटेल में पता चल जाएगा. एक एक का क्वेश्चन आप प्रॉपरली बना सकते हो. आप थोड़ा सा ओनली 30 मिनट्स अ डे आपका काम हो जाएगा. ठीक है. नाउ टुडे वी विल गो थ्रू द टर्टल डायग्राम ऑफ 3 प्रोसेसेस आई टोल्ड यू. टर्टल डायग्राम भी समझिए आप. टर्टल डायग्राम नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिटिंग, जैसे मैंने पहले बताया, आप आपके यहाँ की जो QMS प्रोसेस है उसको एस्टेब्लिश करने के लिए भी उसको यूज कर सकते हो, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली उसके अंदर पूरा आ जाता है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, कैसे क्या 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 चीजें करना है मुझे, इनपुट क्या है, सपोर्ट प्रोसेस क्या है. तो एक आपको टोटल इंसाइट दे देता है आपकी प्रोसेस के बारे में, है ना. सो वी विल गो टू दिस प्रोसेस टर्टल डायग्राम ऑफ कैलिब्रेशन प्रोसेस फर्स्ट, किस तरह से बनता है ये. और फिर आपको जब ये 2-3 चीजों का पता चल जाएगा तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि थिंक कर सकते हो आप कि मैं इस प्रोसेस का कैसे बनाऊंगा, है ना, अलग अलग प्रोसेस का कैसा बनाऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा. सो वी विल डू दिस बट विद आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स. ओके. सो टर्टल डायग्राम ऑफ कैलिब्रेशन प्रोसेस. सो टर्टल डायग्राम में सबसे, जैसे आप, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, यू कैन यूटिलाइज इट फॉर इंटरनल ऑडिट ऑल्सो. जैसे आप जा रहे हो तो ब्लैंक फॉर्मेट जो मैंने शेयर किया था वो लेके जाइए और उस प्रोसेस को समझिए, है ना. वन इज दैट. अनदर वन, आपकी जब आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आपका खुद का डेवलप कर रहे हो ISO 9000 के अकॉर्डिंग, तो भी आप यूज कर सकते हो. हर एक सेक्शन का फिर आप टर्टल डायग्राम बना दो, या हर एक एक्टिविटीज का टर्टल डायग्राम बना दो, जिसके अंदर आपको पता है कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या मैंने उसको प्रोवाइड किया है. जब ये सब कुछ चीजें रहेगी, इसका मतलब आपकी प्रोसेस अच्छी चल रही है. तो आपने अगर ऑडिटर को ये डॉक्यूमेंट भी दिखा दिया तो भी काम हो जाएगा कि यस दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग. नाउ डेफिनेटली ही विल वेरीफाई. ऐसा नहीं कि ये डॉक्यूमेंट दिखा दोगे तो ऑडिटर ये हो जाएगा, है ना. वो डेफिनेटली चेक करेगा, आपके जो आउटपुट है उसको चेक करेगा, आपके KPIs को मींस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को चेक करेगा, आपके रिस्क डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, जो कॉम्पिटेंस ऑफ द पीपल है उनको चेक करेगा, है ना. तो ये सब चीजें क्लैरिटी आ जाती है एकदम. तो आप अगर ऑडिट करने जा रहे हो तो भी आप बनाइए, है ना, इसको जो आपकी टर्टल डायग्राम है उसको आप बनाइए. फॉर एग्जांपल आप गए, आपके पास ब्लैंक फॉर्मेट था, आपने डाल दिया प्रोसेस नेम कैलिब्रेशन प्रोसेस, और इसके यहाँ पे आप प्रोसेस का ओनर का भी नाम डाल दीजिए इसमें, है ना. ओनर ऑफ द प्रोसेस जो रहेगा उसका नाम भी होना चाहिए वहां पर, है ना. फिर आप देखिए इसके अंदर इनपुट क्या है. तो आपको खुद से नहीं लिखना है, आपको उनसे पूछना है व्हाट आर द इनपुट्स. तो वो बताएंगे कि मीन्स आप इस कैलिब्रेशन प्रोसेस को करने के लिए, है ना, उसके लिए इनपुट क्या क्या लगते हैं. तो बताएंगे यस
कैलिब्रेशन प्लान जो है, शेड्यूल लगेगा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स अगर कोई है, और प्रोडक्शन प्लानिंग भी लगेगी, क्योंकि कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां पे यूज होते हैं। तो उसको कैलिब्रेशन कैरी आउट करने के लिए हमको वो प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग भी पता होना जरूरी है कि कब वो पर्टिकुलर प्रोसेस जो स्टॉप में रहेगा और व्हेन दे कैन स्पेयर दैट, है ना। तो कभी कभी हमको वो जरूरत रहती है। देन व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस? तो इस प्रोसेस का आउटपुट है हमारे जो कैलिब्रेशन रिकॉर्ड्स है ना, सर्टिफिकेट्स है या कैलिब्रेशन का स्टेटस जो हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द मॉनिटरिंग डिवाइस, वो हमारा आउटपुट है ऑफ द कैलिब्रेशन प्रोसेस। तो कैलिब्रेशन प्रोसेस करने के बाद हमारे पास ये सब चीजें रहती है। टेस्टिंग के रिकॉर्ड्स, उसके बाद जब हम टेस्ट करते तो वो रिकॉर्ड, और फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। सो अगर कस्टमर की रिलेटेड में कोई था, उनकी डिमांड कुछ थी, तो कस्टमर का फीडबैक जो है वो भी हमारे आउटपुट है हमारे कैलिब्रेशन प्रोसेस का। अब हम एक कैसे कैरी आउट करते हैं? यू नीड टू आस्क हिम हाउ यू कैरी आउट द कैलिब्रेशन प्रोसेस, व्हाट थिंग्स यू रिक्वायर। तो हमको कैलिब्रेशन के इक्विपमेंट्स चाहिए, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर भी चाहिए हमको, कैलिब्रेशन रूम लैब चाहिए हमको, गेज एंड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, है ना। अब ये कुछ आउटसोर्स भी हो सकती है ना। अब ये आउटसोर्स हो सकती है, तो पहली बात तो ये कैसे कैरी आउट करते हो, क्या रिसोर्सेज चाहिए थे, और हाउ यू आर गोइंग टू कैरी आउट, ये प्रोसेस कैसे कंट्रोल करते हो आप, ताकि ये एज पर रिक्वायरमेंट ही चले, कंसिस्टेंटली सेम चले। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एसओपीज वर्क इंस्ट्रक्शन बना के रखा है, और हमारे पास कंट्रोल डॉक्यूमेंट है रिलेटेड टू द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, है ना, कि हर एक कैलिब्रेशन जो हम करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट का, उसका जो एरर है उसके लिए हमारे पास क्या एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, कितना एरर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है। सो जिससे कि हमारा ये जो कैलिब्रेशन प्रोसेस है वो कंट्रोल में रहता है। हमको पता है कि जो आउटपुट निकला है हमारा कैलिब्रेशन के रिकॉर्ड, वेदर दे आर एज पर अवर रिक्वायरमेंट और नॉट, क्या हमको इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कुछ एक्शन लेना है नहीं लेना है, हमको इससे पता चलता है। ओके, देन यू मे आस्क कि व्हाट आर द वेरियस सपोर्ट और आउटसोर्स प्रोसेसेस। तो यस, एक्सटर्नल लेबोरेटरी इसमें है, क्योंकि कुछ कैलिब्रेशंस जो है वी कैन नॉट कैरी आउट इन हाउस, कुछ हम करते हैं for which we have the calibration room inside our factory, but some calibrations we are not carrying out on our own, we are getting it done through different outside laboratory, या आप उनको बोल सकते हो। देन ट्रेनिंग है, कैलिब्रेशन रिलेटेड ट्रेनिंग जो है ये हम आउटसोर्स करते हैं, कि हमारे यहाँ के लोगों को क्वालिफाइड पर्सनल से हम, एक्सटर्नल पर्सन से हम ट्रेनिंग दिलाते हैं, है ना। मेंटेनेंस सेक्शन का हमको सपोर्ट चाहिए रहता है, बिकॉज देयर आर सर्टन इंस्ट्रूमेंट्स फॉर विच वी रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेंटेनेंस सेक्शन फॉर असेंबलिंग डिसेंबलिंग वगैरह जो भी रहेगा उसके लिए, और गैस सप्लायर का भी हमको सपोर्ट लगता है। सो नाउ दीज आर द सपोर्ट थिंग। अब आपको पता चल गया कि ये प्रोसेस जो है बाकी लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है ना, वो भी हमको पता चल गया। अब हमको उनको पूछना है कि आप किससे कैरी आउट करते हो, विथ whom, विथ हु यू कैरी आउट। जैसे कॉम्पिटेंस है, स्किल्स है, प्रोसेस ओनर्स है, तो आप बोलो कि इसके अंदर हमारा कैलिब्रेशन सेल के इंचार्ज अलग है, और कैलिब्रेशन इंजीनियर है, वो इसको कैरी आउट करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं इसको। और जब आउटसोर्स प्रोसेसेस के साथ जो डीलिंग है, हमारे क्वालिटी हेड और परचेस असिस्टेंट करते हैं, दोनों मिलके आउटसोर्स प्रोसेस को डील करते हैं। अब आप क्या कर सकते हो फिर, अब इन लोगों का कॉम्पिटेंस, स्किल मैट्रिक्स, कॉम्पिटेंस मैट्रिक्स, है ना, उनकी ट्रेनिंग वगैरह आप चेक कर सकते हो कि वेदर दे आर कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट दिस थिंग्स और नॉट, है ना। उनके सर्टिफिकेट्स वगैरह वो आप चेक कर सकते हो। गॉट इट? ये डॉक्यूमेंटेशन आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। अब आप उनको पूछ सकते हो कि व्हाट आर योर वेरियस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, क्या आपने उसको डिटरमाइन किया है? तो एज ऑडिटर दे नीड टू टेल यू, वो आपको बताएंगे क्या क्या रिस्क है, आइदर वो आपको रिस्क का डॉक्यूमेंट दिखा देंगे, है ना। तो वो क्या है, परचेस ऑर्डर टाइमली प्रोसेस नहीं हुआ, है ना, जो कैलिब्रेशन प्रोसेस है उसको हमने फॉलो नहीं किया प्रॉपरली, एक्सटर्नल एजेंसी का जो सर्टिफिकेट था वो वैलिड ही नहीं था, है ना, वो एक्चुअली उनका स्कोप जो था उसके अंदर इंक्लूड ही नहीं था। ये सब चीजें रिस्क है उसके रिलेटेड, है ना। एक्सटर्नल लेबोरेटरी की जो पीपल है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट,
कैलिब्रेशन प्लान जो था वो रेडी नहीं किया हमने, है ना, फ्रॉड डॉक्यूमेंट सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल लेबोरेटरी हो गया, इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ कैलिब्रेशन चला गया, मिस टाइम पे नहीं किया हमने, तो ऑल दीज आर द रिस्क बेसिकली एसोसिएटेड विद द कैलिब्रेशन प्रोसेस। अब आप उनको पूछ सकते हो हाउ यू एड्रेस दैट, तो आपको वो लोग क्या बताएंगे, ऑडिटी आपको दिखाना चाहिए फिर कैलिब्रेशन का रिस्क एसोसिएटेड विद द कैलिब्रेशन प्रोसेस और उसके ऊपर क्या एक्शन लिए हैं वो उनके पास होना चाहिए डॉक्यूमेंटेड, उसका स्टेटस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप वेरीफाई कर लो। यस मिस्टर प्रशांत। सर ये फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या होता है, उसको थोड़ा एलोबरेट करिए प्लीज। फ्रॉड में कैसा होता है कि जैसे वो कॉम्पिटेंट है ही नहीं, जो आपकी लेबोरेटरी जो है ना, जैसे लेबोरेटरी से आप कराते हो, एनएबीएल लेबोरेटरी है फॉर एग्जांपल, बहुत बार क्या होता है कि दे आर नॉट एनएबीएल और इवन देयर सर्टिफिकेट इज एक्सपायर्ड। उनका अगर आप स्कोप देखोगे, कभी भी एनएबीएल से जब करते हो ना, तो एनएबीएल का लोगो रहता है वहां पर, वो देखना चाहिए, उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है या फिर उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एनएबीएल की लैब पे जाके देखना चाहिए, एनएबीएल की वेबसाइट पे। उसका स्कोप में क्या पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट दिया है या नहीं दिया है, वो देखना चाहिए कि ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की रेंज क्या उसके अंदर कवर है या नहीं है, और जिस मास्टर से उन्होंने चेक किया है क्या वो मास्टर वैलिड था कि नहीं वैलिड था, उसका सर्टिफिकेट आपको देखना चाहिए। तो बहुत बार क्या होता है, आप अगर ये चेक नहीं करोगे तो वो ऐसे ही प्रोवाइड कर देते हैं। यस यस मिस्टर प्रशांत। सर कई बार तो ये एनएबीएल सर्टिफिकेशन वगैरह वो तो बराबर हो सकता है, हाँ लेकिन अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ज्यादा भेज दिए कैलिब्रेशन के लिए तो हाँ विदाउट चेकिंग जस्ट दे प्रिपेयर द सर्टिफिकेट। हाँ हाँ तो जैसे आरटीपीसीआर टेस्ट में हो रहा है ना हाँ हाँ आजकल। यस। तो तो उस टाइप का अगर है कुछ, हाँ जस्ट उन्होंने डॉक्यूमेंट के लिए डॉक्यूमेंट दिया लेकिन एक्चुअल एरर मालूम नहीं पड़ता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मेजर्स अपन ये कर सकते आप हैं, देखो, वेदर दे आर जेन्युइन। हाँ यस, तो उसके लिए वही रहता है कि आप रिस्क है, ये दिस इज वन ऑफ द रिस्क। तो रिलायबिलिटी नहीं है सप्लायर की, एक्सटर्नल लेबोरेटरी इज नॉट रिलायबल। अब उसके लिए आपको लेना चाहिए कि जो आपका सिलेक्शन है, सिलेक्शन जो प्रोसीजर है आपकी, है ना, आप जो सिलेक्ट करते हो लोगों को, आप इट इज एक्सटर्नल प्रोवाइडर बेसिकली फॉर यू, इट इज एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर। तो आपकी जो परचेसिंग प्रोसीजर है या फिर आपका सिलेक्शन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर जो है, इवेल्युएशन ऑफ एक्सटर्नल प्रोवाइडर है, जो स्टेप आप कैरी आउट करते हो, वो उसी के लिए तो है कि ये चीजें ना हो। तो वो जब हमने सिलेक्शन किया तो क्या आपने उनकी लेबोरेटरी को जाके कभी विजिट किया, उसके लिए एक और है कि ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन आस्क देम टू परफॉर्म द ऑडिट इन फ्रंट ऑफ योर पीपल। अगर वो इतना क्रिटिकल है थिंग तो आपको विटनेस करना चाहिए, यू कैन आस्क देम टू विटनेस दिस वन, है ना। तो इवन अपना जो सर, तो इस केस में अपना जो रिस्क असेसमेंट वाला फॉर्मेट है, तो हाँ उसमें वो कवर्ड है कि नहीं वो भी देख सकते हैं ना, उसमें वो यस पॉइंट भी यस उसमें ऐड कर। डेफिनेटली डेफिनेटली, हाउ यू आर एड्रेसिंग, ये तो मैंने जस्ट लिख दिया है कि दीज आर द रिस्क एसोसिएटेड। आपको उनको मांगना है डॉक्यूमेंट, ये तो आप एज ए ऑडिटर जब जा रहे हो तो उनसे पूछ के जस्ट लिख रहे हो आप, फिर आप क्या बोलोगे, यस ओके, आपने आपने रिस्क लिख लिया, तो प्लीज शो मी द डॉक्यूमेंट वेयर यू हैव मेंशन दिस रिस्क एंड वेयर यू हैव मेंशन द एक्शंस टू बी टेकन टू एड्रेस द रिस्क। सिमिलरली द कॉम्पिटेंसी ऑफ द पर्सन डूइंग द एक्चुअल कैलिब्रेशन और हाँ यस, ये बाकी जो आपका, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो उनकी कॉम्पिटेंसी भी चेक कर सकते हैं। हाँ ये यहाँ पे आ जाएगा कि जो लोग है कैलिब्रेशन इंजीनियर है ना, कॉम्पिटेंस स्किल्स प्रोसेस ओनर्स, तो फिर आप जो है उनको मांगोगे, आप दिखाओ इनके डेटा मुझे कॉम्पिटेंस के, इनके कैलिब्रेशन के सर्टिफिकेट वगैरह, इनको ट्रेनिंग मिला होगा, इनका इवेल्युएशन होगा। तो ट्रेनिंग इज नॉट फिनिश देयर ना, ट्रेनिंग के बाद इवेल्युएशन भी होना चाहिए, इनको जो ट्रेनिंग मिला था उसका इवेल्युएशन दिखाइए। आप इवन उनको पूछ के इंटरव्यू कर सकते हो, यू कैन इंटरव्यू दिस पीपल, है ना, जो भी है ना उनको आप इंटरव्यू कर सकते हो। सिमिलर थिंग जो आपके एक्सटर्नल लेबोरेटरी है, उनकी जो पीपल है दे आर नॉट कॉम्पिटेंट, तो आपको जो कैलिब्रेशन करता है उसका भी आप कॉम्पिटेंसी का सर्टिफिकेट मांग सकते हो, और मांगना चाहिए, आपको मांगना चाहिए, बिकॉज देर आर सो मेनी लेबोरेटरीज आउट देयर, वो नाम के लिए है और एक्चुअली नहीं करते, दैट इज द डिफरेंस। एक होता है कि एनएबीएल सर्टिफाइड है और एक होता है कि क्या वो इफेक्टिव है। जैसे कि ड्राइवर है फॉर एग्जांपल, लाइसेंस है इसका मतलब ड्राइव, देख पीपल कैन ड्राइव, है ना, बट एवरी ड्राइवर इज नॉट गुड ना, एवरी ड्राइवर इज नॉट गुड। वो आपको कहां से पता चलता है, जब आप जाने के पहले उसका बैकग्राउंड चेक कर लेते हो, या कभी आपके रेफरेंस में किसी ने उससे यूज किया है, या फिर आप वो करने के पहले उसको इवेल्युएट करते हो प्रॉपरली, है ना, आप उनको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी बताते हो प्रॉपरली।
या कुछ क्लॉजेस आप डाल देते हो कि नहीं अगर ऐसा हुआ तो हम ये नहीं करेंगे, तो इस तरह से हम उस रिस्क को कंट्रोल में लाते हैं। सर कभी आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से ऐसा हुआ है कि कोई अगर एजेंसी है, पर्टिकुलरली कैलिब्रेशन एजेंसी है या वेंडर है, तो उसको आपको पता है कि इसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, तो आपने वो सर्टिफिकेट को ही एक्नॉलेज करने से मना कर दिया है सर? हाँ हाँ, डेफिनेटली हम करते नहीं। हम जैसे हमारे पास आता था तो एक तो हम चेक करते थे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। बहुत बार तो ऐसा होता था कि जो प्रॉपर नहीं रहती है ना ऑर्गेनाइजेशंस, जो लेबोरेटरीज, वो तो इवन सर्टिफिकेट में मिस्टेक्स कर देंगी, है ना, सर्टिफिकेट के एरर्स में मिस्टेक कर देंगी। इवन जो उनका स्कोप है, हमने बहुत सारे लेबोरेटरीज का तो स्कोप चेक किया एनएबीएल की इस पे जाके, आपके वेबसाइट पे जाके, और उनके स्कोप में था ही नहीं वो। तो अल्टीमेटली जब भी आपको पहले सिलेक्ट करना है ना कोई लेबोरेटरी को, तो उनका स्कोप मांगना है। एक तो एनएबीएल सर्टिफाइड इज वन थिंग, फिर एनएबीएल सर्टिफिकेशन का स्कोप मांगना है उनसे। उनके यहाँ पे जो मास्टर इंस्ट्रूमेंट है उनके लिस्ट मांगना है और उनके सर्टिफिकेट मांगना है आपको, रिलेवेंट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, रिलेवेंट टू योर इंस्ट्रूमेंटेशन, है ना। जैसे अगर आपके पास वर्नियर है, फॉर एग्जांपल वर्नियर हम अगर बाहर भेजते हैं, जिस भी लेबोरेटरी के पास जा रहा है उनसे पूछना है कि ये इसका एनेबल का स्कोप दिखाइए आप, कि आपके एनेबल के स्कोप में ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है ये कवर्ड है, और जो आप मास्टर यूज करने वाले हो, मास्टर इक्विपमेंट फॉर कैलिब्रेशन, उसका सर्टिफिकेट बताइए क्या वो वैलिड है कि नहीं है। ये सब चीजें आपको चेक करनी है। दैट विल इंश्योर कि कैलिब्रेशन प्रोसेस सही हुआ। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट तो आउटपुट है ना। कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, दैट डजंट मीन कि ये प्रोसेस सही चला है। ये सब प्रोसेस के अंदर ये सब इश्यू आ सकते हैं। इन इश्यूज को जब हम कंट्रोल करेंगे, प्रोसीजर प्रॉपर रहेगा, रिस्क एड्रेस हम प्रॉपर करेंगे, सपोर्ट प्रोसेस जो उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा, रिसोर्सेस हम प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे, है ना, हमारा जो कॉम्पिटेंसी वगैरह ये हम प्रॉपर रहेगी, इनपुट्स प्रॉपरली डिफाइंड रहेंगे, उसको कंसिडर करेंगे, तभी तो आउटपुट सही रहेगा। दिस इज द आउटपुट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ये सबका कोलेब्रेशन होके वो बाहर मिलता है, पर मैक्सिमम टाइम हमारा फोकस यही पे रह जाता है लोगों का, ये है ना तो हो गया काम। नो, इसकी रिलायबिलिटी तभी है जब इन चीजों के ऊपर हम अच्छे से ध्यान देते हैं। और लिटरली एज आई टोल्ड यू कि ISO 9001 जो है, यू शुड implement, organization should implement for their own benefit, not just for the showing it to the customer or outer world. आप सोचिए कि आप पैसा खर्च कर रहे हैं हम फॉर कैलिब्रेशन, और हमको कैलिब्रेशन प्रॉपरली करके भी नहीं आ रहा है, और वो कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट के बेस पे हम मटेरियल को कभी कभी नॉन कंफर्मिंग बता देते हैं और कभी कभी कंफर्मिंग भी बता सकते हैं। अगर एरर प्रॉपरली हमने उसको डिटेक्ट नहीं हुआ तो सम टाइम कंफर्मिंग मटेरियल जो है वो नॉन कंफर्मिंग बता देंगे हम, और नॉन कंफर्मिंग को कंफर्मिंग बता देंगे। बोथ द केसेस ऑर्गेनाइजेशन इज एट लॉस, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस है वो तो। सो इन प्रोसेस पे अगर हम कंट्रोल रखेंगे, इट इज गोइंग टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन ओनली, ठीक है। दैट्स वाई। और लिटरली जब आप प्रोसेस आपका डिजाइन जब कर रहे हो सिस्टम को, इफ यू डिजाइन बेस्ड ऑन द टर्टल डायग्राम, तो बहुत ही सही हो जाता है। मींस इट कैन यू कैन मैनेज द प्रोसेस वेरी वेल। आप क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट अच्छे से कर सकते हो। अब आप बताइए मुझे, एज अ ऑडिटर भी जब जाते हो, इसके अलावा और क्या चाहिए हमको, है ना। प्रोसेस के लिए इनपुट क्या है, और हर एक चीजों के लिए फिर वहां पे ये है रिक्वायरमेंट्स दी गई है इन द ISO 9001, उसके साथ वेरीफाई करना है हमको कि वो सब कुछ चीजें बराबर है या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसके क्लॉजेस को मीट कर रही है या नहीं है ना, कंडीशन है। अब गेजेस जो हमने व्हाट रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ये चाहिए हमको। अब मैं इनकी कंडीशन भी तो दिखाऊंगा ना। रिसोर्सेज जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो मेंटेन होना चाहिए। प्रोवाइड तो किया, पहले तो प्रोवाइड किया कि नहीं किया, मेंटेन किया है कि नहीं है, मेंटेन करने के लिए आप क्या कर रहे हो, वो सब पूछना है आपको, देखना है। अगर इक्विपमेंट जो है वो मेंटेन नहीं है, इसका मतलब देयर इज अ नॉन कन्फॉर्मेंस, क्योंकि 9001 से कि आपके जो मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस है या फिर आपके जो रिसोर्सेस है वो मेंटेन होने चाहिए। नहीं मेंटेन है तो इट इज नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट, नॉन कन्फॉर्मेंस। So I think it's 8:45. So tomorrow, what we will do, we will go through the maintenance process, okay, and
दिस कंट्रोल ऑफ नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट का एक जो रिक्वायरमेंट है, तो एक मैंने और एक टर्टल डायग्राम बनाया है, वी विल गो थ्रू दैट. तो 2 टर्टल डायग्राम्स वी विल कवर टुमारो. एंड द अनदर वे ऑफ ऑडिटिंग अप्रोच, दैट इज प्लान डू चेक एक्ट और मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस का अप्रोच है, किस तरह से करना है. अब एनसी सिनेरियो जो है, वी विल डू इट टुमारो. बट व्हाट वी विल डू, आई एम गोइंग टू शेयर दिस 2 सिनेरियोज विथ यू टुडे. आप लोगों का काम है कि आप इस सिनेरियो से जाइए, सोच के रखिए कि कौन सी, आई एम सेंडिंग यू बोथ दिस थिंग्स, है ना, ए सिनेरियो एंड दिस फॉर्मेट. आप सोच के रखिए कि इसके अंदर कौन सा क्लॉज अप्लीकेबल रहेगा इस रिक्वायरमेंट पे. क्लॉज की रिक्वायरमेंट क्या है, नॉन कन्फॉर्मेंस का स्टेटमेंट लिखिए और एविडेंस लिख के ट्राई कीजिए जस्ट, है ना. एंड ट्राई टू सेंड इट मी बिफोर से अराउंड एट अराउंड 5 o'clock समथिंग, ताकि मैं एक प्रेजेंटेशन में उसको इंक्लूड कर लूं. एंड वी विल डिस्कस दिस टुमारो. ठीक है. सो टुमारो लेट अस फिनिश दिस टर्टल डायग्राम एंड दिस. एंड लास्ट डे जो रहेगा, देन डे आफ्टर टुमारो विल बी द लास्ट डे, wherein we will go through all the recap of all the things what we learned and clause applicability matrix. Yes, Mr. Prashant. सर 6:30 तक कर पाएंगे सर, क्योंकि वो कल ड्यूटी आवर्स भी है, तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, कोई डिफिकल्ट हो बात जाएगा. नो नो इशू, नो इशू. आप इसको गो थ्रू करके जस्ट मुझे उसके पहले भी बता देंगे ना, जस्ट चालू होने के पहले भी 10 मिनट पहले, देन ऑल्सो आई कैन इंक्लूड आपकी जो या रिक्वायरमेंट. फिर कुछ क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे आपको डिस्कस कर सकते हैं ना, अगर हाँ हाँ, कुछ डेफिनेटली इस डेफिनेटली. वाला. हाँ. ओके. और आई एम सेंडिंग ओनली दिस 2 सिनेरियोज, ऑडिट सिनेरियो 1, ऑडिट सिनेरियो 2. ठीक है. ओके, थैंक यू. Okay, okay. So I am finishing it. Let us meet tomorrow and continue. Okay. Yeah. So bye bye. Good night. Take care. See you people tomorrow. ओके, थैंक यू सर. बाय. Oh, bye bye. Bye, Mr. Bye, Mr. Eki.